Okay. So good morning, everyone. Good afternoon, in fact. It's 1 p.m. Good afternoon. All right. So join the class fast. Yes, why the strength is so low? क्या बात है? Okay. So what is the topic of today's class? We will be continuing of what we have done on Saturday. So plus we will be discussing some of the questions from your back exercise of chapter number 8. And I will tell you about the assignment. Okay, assignment number 2 that we have to do. I will be posting the same assignment by today itself. ठीक है, और इसके notes मैं डाल दूंगी. ओके. हाँ जी, मेहुल क्लास में स्ट्रेंथ क्यों लो है इतनी? मैम अभी टाइम ही 1 o'clock हुआ, अभी 5 मिनट तो वेट करनी पड़ेगी. हाँ, अच्छा 2-3 मिनट पहले ही हो गया लॉगिन. यस मैम. हम्म. चलो आप first normal form, second and third normal form, all these 3 normal forms we have discussed. So who will tell me about these normal forms? Rupal? Normal forms. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. समझ में आया आपको normal forms क्या होती हैं? What are the different types of normal forms? Yes, what are the different types of normal forms? First of all, what is normalization? आपने Saturday की class नहीं ली थी ना? Neither you were there. You were there on Thursday. Thursday class लिया था. एक तो आपकी क्लास के साथ प्रॉब्लम है. You guys don't interact. मतलब at least you can say yes or no. So that I don't look like stupid, keep on asking the same questions again and again from you. इसी बात पे मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है. पता नहीं क्या दिक्कत है. हाँ जी, नॉर्मल फॉर्म्स हम पढ़ रहे हैं. आप में से इफ यू आर नॉट गेटिंग अबाउट नॉर्मल फॉर्म्स, प्लीज लेट मी नो, बिकॉज इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. आप लोगों को समझ में आएगा तभी हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं. See, normalization is a process of. हाँ, बोलो. क्लियर है नॉर्मलाइजेशन तो तुम्हें क्लियर है, बाकियों का क्या सीन है? What is third normal form? Okay, then tell me what is third normal form? हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म हो गया जो आपको सेकंड नॉर्मल फॉर्म को भी ये करता हो और उसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए. Now, what is transitive dependency? मैम जैसे अगर ए फिर वो एरो फिर मतलब बी इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ए और अगर सी इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन बी तो आपको नहीं, ये तो सी ठीक इज है. फंक्शनली डिपेंडेंट. This is what the definition, but according to third normal form, according to functional dependency, if it is given, और हर एक dependency को आपने बताना है कि वो transitive है कि नहीं है, then how do you check? I have told you about a rule. Now I want to listen the same rule. What is that rule?
How can you say that alpha implies beta is a transitive dependency or is not a transitive dependency? How can you say that? मैम इसमें दो कंडीशंस में से कोई भी एक ट्रू होना चाहिए, या तो आपको अल्फा सुपर की होना चाहिए हाँ, यस, अल्फा या तो सुपर की हो या फिर बीटा आपको प्राइम एट्रीब्यूट हो। यस। सो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी में alpha tends to beta में alpha implies beta में you can say that alpha implies beta is not a transitive dependency in a case where either alpha to be a super key या बीटा क्या होना चाहिए आपका प्राइम, मतलब कि यहाँ पर आपका प्राइम टू प्राइम अलाउड है, नॉन प्राइम टू नॉन प्राइम अलाउड नहीं है, ठीक है। और पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है? आप लोगों को बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है ये वाला? यस मैम। Actually, it is going on in my neighborhood, so I can't do anything of it. बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है, तो चलो उनको बोलो थोड़ी देर रुक जाए, हाँ, क्या उनको कह बोलो थोड़ी देर रुक जाए। रहे? हाउ कैन आई से देम? पता नहीं, ग्राउंड फ्लोर पे हो रहा है तो वी स्टे ऑन थर्ड, तो पता नहीं किसके घर पे हो रहा है। चलो अच्छा, नॉर्मल फॉर्म देखो, एक क्वेश्चन आता है जिसमें यू वांट टू टेल, एक आपको जैसे लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। you have to find out the आपको एक relation given होगा and in that relation you have to find out the highest normal form in the relation ism, ठीक है। जैसे ये जिसको नोट कर लो, A B C D E F, ये आपका relation है, ठीक है। and set of dependencies are given to you, like A implies F, E implies A, and EC implies D, and the last A implies D. Okay. Now all these dependencies is given to you. The question is find out the normal form the relation is in. Question ye, this was the question that has been asked in your GATE 2000 GATE 1999 में, ठीक है। अब इसमें you have to given कि किस highest normal form में ये relation है, so you have to determine the highest normal form. So in order to know about the highest normal form ना, आपको फर्स्ट एनएफ से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यू हैव टू स्टार्ट अपोजिट, मतलब यू गो फॉर बीसीएनएफ, अगर बीसीएनएफ में नहीं होगा देन यू गोइंग टू चेक फॉर थर्ड एनएफ, देन सेकंड एनएफ एंड देन इन फर्स्ट एनएफ, ओके। तो डोंट स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट एनएफ, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट, क्योंकि अगर लास्ट वाला नहीं होगा तो उससे लास्ट वाले के लिए चेक करोगे आप, ठीक है। और बीसीएनएफ के लिए क्या बताया था मैंने, हाउ कैन वी से दैट अ रिलेशन इज इन बीसीएनएफ? Yes, BCNF के लिए I've told you something. BCNF I think it was not covered yet. Boy's code normal form. देखो हमने first, second and third normal form पढ़ी है, and I am believing that it is clear to every one of you. Rishabh, is it clear? ठीक है, तो बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, इन देखो जो हमने थर्ड नॉर्मल फॉर्म पढ़ी है जिसमें हम कह रहे हैं कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, दैट इज फॉर एवरी रिलेशन और फॉर एवरी डिपेंडेंसी अल्फा टू बीटा। अगर हम बोल रहे हैं अल्फा हमारा या तो सुपर की हो, ठीक है, या क्या होना चाहिए, बीटा इज अ प्राइम एट्रीब्यूट। बट इन केस ऑफ बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बीसीएनएफ, बीसीएनएफ में दोनों हमारा क्या होना चाहिए, सुपर की होना चाहिए। एक्स मतलब कि दूसरे वाले की तो कंडीशन हम दे ही नहीं रहे, फॉर एवरी नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी एक्स हैज टू बी अ सुपर की। यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट कि वाई सुपर की है या वाई कोई नॉन प्राइम है या प्राइम है। यू आर, अगर आप फॉर x implies to y, अगर x आपका सुपर की है then you will going to put a tick कि this is allowed in BCNF for every dependency। जैसे इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले चेक करना है कि ये BCNF में है कि नहीं। now BCNF में चेक करने के लिए first of all you'll pick up this dependency and you're going to check that whether C is a super key or not, E is a super key or not. So you're going to determine all these things. So for BCNF, a relation is in BCNF if R is in third normal form, first of all वो third normal form में होना चाहिए, and
for every functional dependency the left hand side, that is x जो है आपका, is a super key. So a relation is said to be in BCNF if and only if for every non-functional dependency, so for every non-trivial functional dependency x implies y, x has to be a super key. ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन आपको, सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, देन वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, सो आई गाइस नोटिंग इट डाउन, सब लोग कोई नोट कर रहा है? Yes, ma'am. तो ये वाला क्वेश्चन नोट करो. सबसे पहले यू हैव टू फाइंड आउट द हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म फॉर दिस इक्वेशन. ये आपका एक रिलेशन आ रहा है जिसके एट्रीब्यूट है ए बी सी डी ई, और इसकी डिपेंडेंसी आपको गिवन है बी सी इम्प्लाइज डी, ए सी इम्प्लाइज बी ई एंड बी इम्प्लाइज ई. ठीक है, तो सबसे पहले इन ऑर्डर टू स्टार्ट विथ, सबसे द वेरी फर्स्ट टास्क इज टू फाइंड आउट द कैंडिडेट की. जैसे ही आप कैंडिडेट की निकालोगे यू विल कम टू नो अबाउट द प्राइम एंड द नॉन प्राइम एट्रीब्यूट एंड द सुपर की, ये सब पता चल जाता है. ठीक है, तो हमारा सबसे पहला काम क्या है, कैंडिडेट की निकालना. तो कैंडिडेट की कैसे निकालते हैं? यस, हाउ डू वी डिटरमाइन द कैंडिडेट की, बताओ. क्लोजर निकालेंगे. क्लोजर कैसे निकालेंगे? आप सबसे पहले एसेंशियल एट्रीब्यूट बताओ. व्हाट आर द एसेंशियल एट्रीब्यूट फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल? इसमें देखो BC इम्प्लाइज D है, AC इम्प्लाइज BE है, और आपका मैम ए और सी. A और C हो गया, D, BE और AC. यस, A एंड C आर योर एसेंशियल एट्रीब्यूट. अब AC एसेंशियल एट्रीब्यूट है तो आप सबसे पहले A का क्लोजर निकाल के देखो. मेरे ख्याल से A के क्लोजर में कुछ नहीं मिलने वाला, तो हम C के क्लोजर में भी कुछ नहीं मिलेगा. क्यों? बिकॉज आप डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करते हैं. आप देख रहे हो ना, डिपेंडेंसी जो गिवन है उसमें A alone is not determining anything, C alone is not determining anything. तो हम AC का क्लोजर निकाल के देखते हैं. ठीक है, AC के क्लोजर में आपको क्या मिल रहा है? You are getting AC, then you are getting BE and BC से आपको D मिल रहा है. तो here आपको AC के क्लोजर में A B C D E सब मिल रहे हैं. उसके बाद जब AC आपके एसेंशियल एट्रीब्यूट है और AC टुगेदर इज डिटरमाइनिंग एवरीथिंग, तो आपको और कैंडिडेट की के ऑप्शन ट्राई करने की जरूरत है कि नहीं? देयर इज नो मोर नीड, है ना, क्योंकि जितने भी ऑप्शन आप ट्राई करोगे उसमें AC हैज टू बी द पार्ट, और जब AC अलोन सब कर रहा है तो बाकी और करने की जरूरत नहीं है. तो आपको पता चल गया कि A और C क्या है? प्राइम एट्रीब्यूट. A और C क्या है? प्राइम. और बाकी नॉन प्राइम कौन कौन से आपके? B, D और E, ये आपके नॉन प्राइम है. ठीक है, नाउ इतना क्लियर हो गया सबको? यस, एवरीथिंग, दिस इज क्लियर टू एवरीवन? तनुज, सिद्धार्थ, क्लियर है? यार कुछ बोल लिया करो, मुझे गुस्सा आता है, लेकिन मैं सबको, जो नहीं रिस्पॉन्ड करेगा आई सिंपली मूव यू ऑफ. पता नहीं क्या दिक्कत है. हाँ, इसके बाद आपको क्या करना है, हर एक डिपेंडेंसी को चेक करो. नाउ पिक अप विद, स्टार्ट विद दिस डिपेंडेंसी BC implies D. नाउ जस्ट टेल मी कि ये आपका, यू हैव टू स्टार्ट विद BCNF. ओके, तो BCNF में क्या बोलते हैं? क्या बोला है मैंने? रिलेशन BCNF में कब होता है? When a relation is said to be in BCNF, when for every dependency X implies B, Y, X implies Y, X has to be a super key. Now BC implies D में is BC is your super key? बताओ, BC super key है क्या? नो मैम. No. How can you say that BC is not a super key? मैम ए और सी आपको एसेंशियल एट्रीब्यूट है तो वो हर सुपर की में होना चाहिए. Yes, yes, yes. So BC आपका सुपर की नहीं है, तो पहला वाला क्रॉस हो गया ना कि BC implies D में ये आपका BCNF not in BCNF है ना? Why? Because BC is not a super key. जब पहली डिपेंडेंसी BCNF में नहीं है, so there is no need for checking the following dependency. तो आप कह सकते हो, you can simply say that the relation is not in BCNF. So the relation जो आपने चेक कर रहे हो is not in BCNF. Now
अब थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए चेक करें। अब थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए कैसे करेंगे बताओ। थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए व्हाट इज द कंडीशन फॉर एवरी डिपेंडेंसी x implies y, क्या होना चाहिए, either x to be a super key या y to be a prime attribute, यही हमने चेक किया था। नाउ स्टार्ट विद द फर्स्ट डिपेंडेंसी, bc implies d में bc क्या आपका सुपर की है, नो, बट और d क्या है आपका, इज d इज योर प्राइम एट्रीब्यूट, बोलो, d इज योर प्राइम एट्रीब्यूट, नो मैम। नो। सो हमारे दोनों कंडीशन फेल हो रही है, बीसी भी हमारा सुपर की नहीं है और डी भी हमारा प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है। जो हम अगेन जो बीसी इंप्लाइज डी वाली जो कंडीशन गिवन है ना, ये हमारा थर्ड एनएफ में भी नहीं है, बिकॉज इट इज अ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, और हम बोल रहे हैं कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। गाइस गेटिंग मी कि हम कैसे चेक कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम all exam point of view, either from your university or from your competitive exam. These kind of questions comes many times, जिसमें आपको हर एक डिपेंडेंसी को चेक करना है। You always start from the highest one and then you go down, ठीक है। तो हमने पहले BCNF के लिए स्टार्ट किया, BCNF के लिए हमने चेक किया फॉर एवरी डिपेंडेंसी हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है हैज टू बी अ सुपर की। अब हमारा सुपर की तो है नहीं, अब फिर हम उसको थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए चेक करेंगे। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हम क्या बोल रहे हैं कि ईदर x टू बी अ सुपर की और y टू बी अ प्राइम। अगेन BC implies to D में both the condition fails, तो हमारा ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी नहीं है। नाउ लेट्स ट्राई फॉर द सेकंड नॉर्मल फॉर्म। सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए क्या कंडीशन होती है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर सेकंड नॉर्मल फॉर्म? हाँ जी मोक्ष, व्हाट इज द कंडीशन फॉर सेकंड नॉर्मल फॉर्म? मैम वो होती है कि मैम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होना चाहिए वो, और पार्शियल डिपेंडेंसी होनी नहीं चाहिए। हाँ तो क्या होती है पार्शियल डिपेंडेंसी? क्या होती है पार्शियल डिपेंडेंसी मोक्ष? याद नहीं है मैम। कमाल है, पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है याद नहीं है, कौन बताएगा क्या होती है पार्शियल डिपेंडेंसी? निकिता, निकिता हाँ क्या होती है सेकंड नॉर्मल फॉर्म? मैम जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होता है वो फंक्शनली डिपेंडेंट होता है पार्ट ऑफ अ कैंडिडेट की। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, हाँ तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी होती है। किसने बोला, रूपल? यस मैम। तो पार्शियल डिपेंडेंसी यू सेड दैट कि हमारा कोई भी पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की शुड नॉट डिटरमाइन द नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, तो ये हम अलाउ नहीं करते। हम कहते हैं कि फुल डिपेंडेंसी होनी चाहिए। फुल डिपेंडेंसी मतलब कि हमारा जो कैंडिडेट की है वो टुगेदर डिटरमाइन करे किसी भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को, मतलब कि इट शुड नॉट बी लाइक प्राइम टू नॉन प्राइम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम हर एक डिपेंडेंसी के लिए ये चीज चेक करते हैं। तो BC implies to D के लिए चेक करो, BC क्या पार्ट ऑफ कैंडिडेट की है, हमारी कैंडिडेट की क्या है इस रिलेशन में, AC, तो BC इज अ पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। इज इट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की? नो, इट इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट, तो BC implies to D इज अलाउड, ठीक है, क्योंकि BC एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, मतलब कि हाँ C हमारा प्राइम है, बट BC जो है वो नॉन, मतलब कि ये हमारा पार्ट ऑफ कैंडिडेट की नहीं है, क्योंकि B इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, तो इट इज अलाउड। नाउ गो फॉर AC implies to BE। AC implies to BE तो अलाउड है ही, क्योंकि AC हमारा कैंडिडेट की है ना। और B implies to E में इज इट अलाउड, इज इट अलाउड? B क्या है, नॉन प्राइम, E क्या है, नॉन प्राइम, नॉन प्राइम टू नॉन प्राइम इज अलाउड, ओनली व्हाट इज नॉट अलाउड, प्राइम टू नॉन प्राइम। और ये जितना प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चन, तो आपको एकदम क्विक हो जाएगा कि प्राइम टू नॉन प्राइम ट्रांजिटिव होता है, ये अलाउड नहीं होता है। नॉन प्राइम टू नॉन प्राइम थर्ड नॉर्मल फॉर्म में अलाउड नहीं है ना। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में ये रिलेशन हम कह सकते हैं कि दिस रिलेशन इज इन
second normal form. How can we say that? Because all the dependencies are valid for partial dependency. No partial dependency is available in this set of functional dependency for this particular relation. Clear हुआ है? Is this question clear to you? Is this question is clear to everyone? देखो Yes, ma'am. ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर सोल्यूशन सारा लिखा हुआ है. यू कैन जस्ट गो एंड रीड एवरीथिंग. हर एक स्टेप के लिए लिखा हुआ है. पहले हमने कैंडिडेट की निकाली, उसके बाद हमने प्राइम और नॉन प्राइम निकाले, उसके बाद वी स्टार्ट फॉर चेकिंग. आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम द लोएस्ट हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म, बीसीएनएफ से चेक करा, फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म, देन सेकंड नॉर्मल फॉर्म. क्योंकि देखो अगर आप फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से स्टार्ट करोगे, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, तो फिर थर्ड के लिए फिर चेक करोगे, तो सिंपल स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट वन. ओके, अब ये वाला जो एग्जाम्पल मैंने ऊपर लिखा था, इसको सॉल्व करके बताओ मुझे. दिस एग्जाम्पल, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल चेक आउट द फाइंड द कैंडिडेट की. इसके लिए कैंडिडेट की निकालो. ये वाला क्वेश्चन था ना, इसके लिए कैंडिडेट की क्या होगी? देखो हमारा ये रिलेशन है ए बी सी डी ई एफ, और क्या गिवन है? सी implies to F, E implies to A, and EC implies to D, and A implies to B. ठीक है, अब यहाँ पर मुझे कैंडिडेट की निकालनी है. कैंडिडेट की निकालने के लिए टेल मी द एसेंशियल एट्रीब्यूट. एसेंशियल कौन से होंगे? ए बी सी डी ई एफ. तो बताओ, C and E are your essential attribute, isn't it? Yes, क्योंकि ma'am. C और E are not appearing on the right hand side on any of the dependency. ये clear है सबको? essential attribute कैसे निकालते हैं? Is it clear to everyone? Please come out with your doubts. If you don't getting any step, please let me know. Anyone, कोई भी student, any student, if you are not getting any step, please let me know. सबको क्लियर हो रहा है how you are able to determine the essential attribute? आपको क्या करना है? You have to just look all the dependencies and try to find out the attribute which are not appearing on the right hand side. So C and E are the one which are not appearing on the right hand side. तो अब आप क्या करो? C का क्लोजर निकालो, E का क्लोजर निकालो. अब देखो यहाँ पे C का क्लोजर में क्या आएगा? C का क्लोजर में आप देखो C तो आएगा ही आएगा, और F भी आएगा, और कुछ आ सकता है? Nothing else you can determine. How we are determining this? We are just determining this from the dependencies. C से F मिल रहा है, F से कुछ मिल नहीं रहा है, तो यही हमारा है. अब E का क्लोजर निकालो. E के क्लोजर में आप E से क्या क्या निकाल सकते हो? E से you can determine E, A, and then B. A से B, nothing else. You cannot determine C, D, ये left है, तो फिर अब हमारा ये alone they cannot determine the attributes. So let's try their combination. तो E और C together try करते हैं. तो E और C से we can determine EC first of all, then C से we can determine F, EC से we can determine D, and E से A. तो हमारे पास सब आ चुके हैं, A से B. और A से B भी हो गया है ना. तो EC का क्लोजर कैन डिटरमाइन ऑल द एट्रीब्यूट्स. तो हमारे को क्लियर हो गया कि EC क्या है? हमारा कैंडिडेट की है. और अब बाकी कॉम्बिनेशंस हम ट्राई नहीं करेंगे. क्यों? बिकॉज EC हैज टू बी द पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की, और EC जबकि हमारा कैंडिडेट की अकेला ही है, EC अलोन इज डिटरमाइनिंग एवरीथिंग. तो E and C आर अ प्राइम एट्रीब्यूट. और नॉन प्राइम कौन से हो गए? नॉन प्राइम हमारे हो गए A, B, D and F. A, B, D and F are नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स. ठीक है ना. अब आगे बढ़ते हैं. अब हमें प्राइम पता चल गया, नॉन प्राइम पता चल गया है. ये हमारे नॉन प्राइम है और ये हमारे प्राइम है. अब क्या करना है? सबसे पहले पहली डिपेंडेंसी को उठाओ. स्टेप 1 वाज फाइंडिंग आउट द कैंडिडेट की. हमने कैंडिडेट की निकाल ली. स्टेप 2 क्या है? जस्ट चेक आउट विथ एवरी डिपेंडेंसी. तो हमने क्या करना है? सबसे पहले C implies to F में, can I say that this dependency is in BCNF?
BCNF के लिए क्या कंडीशन है? BCNF के लिए क्या कंडीशन है मोक्ष? मैम एक तो मैम सी से एफ में मैम सी सुपर की होना चाहिए, हाँ, तो क्या सी और सुपर मैम की है? थर्ड हाँ बोलो, और क्या होना चाहिए? और थर्ड नॉर्मल फॉर्म होनी चाहिए मैम। हाँ, तो जब हम उल्टा चेक करते हैं ना, BCNF के लिए चेक करो। फॉर एवरी डिपेंडेंसी हमने पढ़ा है, फॉर एवरी डिपेंडेंसी अल्फा टू बीटा, अल्फा हैज टू बी द सुपर की, है ना? तो इसके लिए उठाओ, क्या ए सी इम्प्लाइज टू एफ में सी सुपर की है? नो। तो ये हमारा नॉट इन BCNF। अब BCNF में है नहीं, तो ट्राई टू चेक फॉर थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए चेक करने के लिए ईदर x टू बी अ सुपर की और y टू बी अ प्राइम एट्रीब्यूट। तो हमारा f जो है वो प्राइम है? नहीं है ना? देखो, नो मैम। c और e प्राइम है खाली, तो c भी हमारा सुपर की नहीं है। f भी देखो, जब अगर ये एग्जाम में आता है तो इफ इट comes in your university exam, then you have to write every step properly. You have to write the condition for third normal form, that for alpha to beta, we can say that it is in third normal form, either in a case alpha has to be super key or beta has to be a prime attribute. You're going to write it because you supposed to get marks, ठीक है? बट पूरा एक्सप्लेन करोगे तभी आपको 5 या 6 नंबर जितने का भी होगा उतना मिलेगा। बट इफ इट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन अगर MCQ का होता है, जो कि MCQ में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और मे बी आपके जो एग्जाम है वो MCQ बेस्ड ही हो, तो 100% श्योर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर टू हैव टू कम इन योर एग्जाम्स। तो उसमें आपको सॉल्व तो करना है, मतलब कि यू डोंट नीड टू शो, तो वो तो पूरा फिर इट मस्ट बी अ क्विक इवैल्यूएशन ऑफ 2 to 3 seconds। इतना ज्यादा टाइम उसमें लगाना ही नहीं होता, हार्डली 20 seconds और 25 seconds में ये होना चाहिए। तो उसमें अब आपका ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी नहीं है, क्योंकि ना सी सुपर की है ना एफ आपका प्राइम एट्रीब्यूट है। अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए चेक करो। सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। पार्शियल डिपेंडेंसी देखो, सी इंप्लाइज एफ में कोई पार्शियल डिपेंडेंसी है? हाँ जी, कौन बताएगा? सिद्धार्थ, कैन यू टेल देयर इज देयर एनी पार्शियल डिपेंडेंसी है? अरे कौन बताएगा? निकिता, द गर्ल्स ऑफ दिस क्लास आर नॉट एट ऑल इंटरेक्टिव। क्या बात है, एक दो बच्चों को छोड़ के? यूजुअली तो गर्ल्स इंटेलिजेंट होती हैं, उल्टा है क्या आपकी क्लास में? शरगुन, नो मैम का क्या मतलब है सिद्धार्थ? नो मैम का मतलब यहाँ पे कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है? शरगुन सिंह, आर यू गेटिंग इन द क्लास? प्रियंका, अरे क्या बात है यार, तुम लोग कुछ नहीं बोलते हो। आई एम जस्ट मूविंग यू आउट फ्रॉम द क्लास। अगर ऐसे ही रहना है ना तो जस्ट डोंट अटेंड माय क्लास। और मेरे को इनकी अटेंडेंस मत भेजना तुम, मेहुल। शरगुन एंड प्रियंका, you have to call me after the class. I'm not stupid that I'm keep on taking your names and you are not at all responding. अगर आपको नहीं आता है, at least you can respond. It's very insulting. हाँ, अब मुझे बताओ, इसमें मेहुल तुम बताओ, इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी है कि नहीं है? मैम हाँ बोलो। अरे है मैम पार्शियल डिपेंडेंसी। कैसे है बताओ, कैसे है? जल्दी बोलो।
मैं राइट डाउन कर रहा हूँ, अभी बताता हूँ। देखो इट्स वेरी सिंपल, इसमें इसका कुछ है नहीं। देखो ना, सी क्या है? सी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ योर कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या है यहाँ पर? ए सी आपकी, ई सी आपकी कैंडिडेट की है, एंड सी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ई सी। एंड सी अलोन, वो बहुत ज्यादा स्मार्ट बन के इट इज डिटरमाइनिंग अ प्राइम नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, वो जो कि अलाउड नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं कि आपको ई के साथ ही रहना है, तभी आप डिटरमाइन करो, आप अकेले डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। तो ये चीज पहली डिपेंडेंसी है, वो ना बीसीएनएफ में है, ना वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, ना वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। तो तीनों कंडीशन को वो सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो हम आगे बढ़ ही नहीं रहे। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि ये रिलेशन ना ही बीसीएनएफ में है, ना ही थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, ना ही सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। द रिलेशन इज सेट टू बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। गॉट इट? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. यस तो आपके पास ऐसे क्वेश्चंस काफी आपको ट्राई करने चाहिए। लेट मी गिव यू सम ऑफ द एक्सरसाइज एंड यू हैव टू सबमिट द एक्सरसाइज बाय टुडे। ठीक है, लिख लो ये क्वेश्चंस। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन गेट 2005 and they have asked you about the highest normal form the relation is in. B C D E H, ठीक है, A B C D E H is the relation और dependency जो given है A to B and BC to D, E to C and D to A, and I want the complete solution. I don't want कि वो third में है, second में है, उसमें है. You have to solve this question on a piece of paper and just take a picture of that and submit me on WhatsApp. ठीक है? You're going to check for every just सारी डिपेंडेंसी के लिए चेक करोगे, उसको लिखोगे जैसे एग्जाम में लिखते हैं। तो मुझे इस क्वेश्चन के लिए दिस इज द रिलेशन आर ए बी सी डी ई एच, और ये उसकी चार डिपेंडेंसी है, ए टू बी, बी सी टू डी, ई टू सी एंड डी टू ए। नोट कर लिया? Yes, ma'am. एक और नोट करो फिर। ए बी सी डी ये है, और इसकी हाँ, वैसे अगर डिपेंडेंसी है कैंडिडेट की नहीं मिल पाएगा तो प्रोसीड कैसे करते हैं? क्या? बोलो बोलो। हम अगर कैंडिडेट की ना मिल पाए, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में कैंडिडेट की नहीं मिल पाएगा, क्यों नहीं उस मिल सिनेरियो पाएगा? में यही तो प्रोसीड ट्रिक है, कैसे? यही तो ट्रिक है। यू हैव टू ट्राई फॉर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स टुगेदर। इसमें डायरेक्ट कैंडिडेट की नहीं निकल रहा है, आपको इसमें बहुत सारे प्रोसीड ऑप्शन करने का स्ट्रगल ही नहीं है। हैं? क्या बोल रहे हो? ओके मैम। इसमें देखो ना, सारे एट्रीब्यूट्स आर अपीयरिंग, एसेंशियल एट्रीब्यूट का कोई सीन ही नहीं दिख रहा है। सारे एट्रीब्यूट लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहे हैं, राइट हैंड साइड पे आ रहे हैं। तो यू आर नॉट गेटिंग एनी आइडिया कि फ्रॉम वेयर यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम। ठीक है, बट यहाँ पर देखो एच जो है वो है ही नहीं किसी भी उसका पार्ट। तो एच हैज टू बी द पार्ट ऑफ ऑल द एट्रीब्यूट्स कैंडिडेट की। अब तुम हर एक ऑप्शन में जब ए का क्लोजर निकालोगे तो ए एच का क्लोजर निकालो, फिर बी एच का क्लोजर निकालो, तो सब में एच हैज टू बी द पार्ट, और फिर सबके साथ कॉम्बिनेशन ट्राई करो टू फाइंड आउट द कैंडिडेट। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, दैट्स व्हाई इट हैज बीन कम इन योर गेट। तो ट्राई टू सॉल्व इट। अगर नहीं होता तो आई सॉल्व द सेम थिंग इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, मैं तो करा दूंगी बिकॉज आई हैव डन दिस, बट आप लोग अगर थोड़ा सा करोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ के करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो है, दिस वन एंड दिस वन। नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। अब हमने आज तक की क्लास में वी हैव स्टडीड अबाउट फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, कैंडिडेट की कैसे निकालते हैं, सुपर की कैसे निकालते हैं, एंड we can easily tell कि which one is a valid functional dependency। अगर क्वेश्चन आता है जिसमें set of dependencies are being given to you, they have asked you which one is the not valid dependency, तो वो solve कर सकते हो, वो determine कर सकते हो कि valid dependency कौन सी है, not valid कौन सी है, वो निकाल सकते हो। yes or no, can you determine that? वो चीज कर सकते हो ना?
वैलिड एंड नॉन वैलिड डिपेंडेंसी डिटरमाइन कर सकते हो, ये पूछ रही हूँ मैं। यस मैम कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद वी हैव आल्सो डन द क्लोजर की क्लोजर ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज कैसे निकालते हैं। वन मोर थिंग इज लेफ्ट टू कवर इज कैनोनिकल फॉर्म। अभी हमने क्लोजर निकालना सीखा है ना, सिमिलरली विल बी लर्निंग हाउ वी कैन फाइंड द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। वो भी बहुत इजी है, मतलब कि वी हैव टू फाइंड आउट द इररेड्यूसिबल सेट ऑफ डिपेंडेंसीज कि जिनको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। मतलब कि आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है कि आपके पास एक रिलेशन है, उसकी सेट ऑफ डिपेंडेंसीज गिवन है। नाउ यू हैव टू, they ask you to find out the canonical form of dependency, मतलब कि find out those set of dependencies that are irreducible, that means you cannot ignore them, that has to be the part of your relation, मतलब कि उनके बिना काम ही नहीं चलेगा। कुछ ऐसे डिपेंडेंसीज है जो रिडंडेंट है। रिडंडेंट मतलब कि दे आर, अगर वो नहीं भी होती है, उनके होने या ना होने की कोई चेंजेस नहीं होंगे। अगर इफ यू एलिमिनेट दोज डिपेंडेंसीज ना, तो आपके रिलेशन में कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो उसको बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी लर्निंग हाउ टू फाइंड आउट द कैनोनिकल फॉर्म, and in today's class we have seen that how we will able to find out the highest normal form। आपके पास एक relation given है, उसकी highest normal form हम कैसे determine करेंगे। तो we have solved 2-3 questions on it, and now the most important topic left is decomposition। मतलब कि आपके पास एक relation given है, उसको normalize करने के लिए आप उस relation को decompose करते हो in 2 more relations। जैसे R एक relation है ABCD, उसको आपने डिकम्पोज किया इनटू R1 एंड R2। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट कि R1 और R2 जो डिकम्पोज किया है, क्या वो लॉसलेस है, क्या वो लॉसी है। ठीक है, डिपेंडेंसी उसमें प्रिजर्व हो रही है। तो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द क्लास इज लॉसलेस डिकम्पोजिशन और लॉसी डिकम्पोजिशन, ये हमने पढ़ना है। ठीक है, उसके भी रूल्स है, अगर वो रूल सेटिस्फाई होते हैं तो हम इजिली डिटरमाइन कर सकते हैं। तो बहुत इजी चीजें हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है। आई थिंक ये इंटरेस्टिंग है सबके लिए। Are you all enjoying the session? क्लास में समझ में आता यस है मैम। सबको? बस एक बच्चे का यस मैम है और बाकी सबका क्या है? क्लास में समझ में आता है? यस मैम। यस बाकी मैम। तो प्लीज ये 2 क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके भेज देना, ठीक है? Yes. जो दिए हैं, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड आस्क द डाउट्स इफ यू नॉट एबल टू डू दैट। ठीक है, ओके, चलो सेंड मी द अटेंडेंस मेहुल। ओके, ओके मैम। सी यू टुमारो, बाय।